নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই মৃণালীজ ক্লাছৰুমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ মেডাম মেৰী কিউৰী এই পাঠটো আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে মেডাম কিউৰীৰ বিষয়ে দুষাৰমান তোমালোকক কৈ লওঁ। মেডাম কিউৰী হৈছে এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী। তেখেতে দুবাৰকৈ নোবেল বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু নোবেল বঁটা পোৱা তেওঁ আছিল প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিজ্ঞানী। এই মেডাম মেৰী কিউৰী পাঠটো হৈছে তেওঁৰ জীৱন ভিত্তিক এটা পাঠ। তেওঁৰ জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে এই পাঠটোত। এতিয়া আহাচোন আমি পাঠটোত কিনো আছে চাওঁ। मैडम मेरी क्यूरी की कहानी संघर्ष की कहानी है। जीवनादर्शों से समझौता न करने की कहानी है। वे एकमात्र ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं, लेकिन उनके जीवन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि मेरी का दोहरे नोबेल पुरस्कार तक पहुंचने का यह सफर अनगिनत कठिनाइयों से भरा है। इनका संपूर्ण जीवन विज्ञान को समर्पित एक टॉप था। মেডাম মেৰী কিউৰীৰ কাহিনীটো হৈছে এটা সংঘৰ্ষৰ কাহিনী আৰু এই তেওঁ জীৱনৰ আদৰ্শবোৰৰ লগত কিন্তু কেতিয়াও সমঝোতা কৰা নাছিলে। সকলোবিলাক তেওঁ সাহসেৰে মোকাবিলা কৰিছিলে আৰু তেওঁ হৈছে প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিজ্ঞানী যিয়ে বিশ্ববাসীক আচৰিত কৰি দুবাৰকৈ নোবেল পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু তেওঁ এই দুবাৰকৈ নোবেল পুৰস্কাৰ পোৱাৰ যি যাত্ৰাপথ সেই যাত্ৰাপথ কিন্তু সুচল নাছিল আৰু তেওঁৰ সমস্ত জীৱনটোৱেই বিজ্ঞানৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত আছিল। मेरी क्यूरी बचपन में मारिया स्केलोडोबक्सा नाम से जानी जाती थी। दोस्त प्यार से उन्हें माइना पुकारते थे। मेरी क्यूरी लड़ाली काলত तेखेतर नाम आছিলে स्केलोडोबक्सा আৰু তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মৰমতে তেওঁ माइना বুলি মাতিছিল। उनका जन्म 1867 में 7 नवंबर को वार्सा पोलैंड में हुआ था। मेरी की पिता माता दोनों अध्यापक थे। 24 साल की उम्र तक वे अपने जन्मस्थान में ही रही। मेरीर जन्म হৈছিল 1867 চনৰ 7 নৱেম্বৰত পোলেণ্ডত আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োজনেই অধ্যাপক আছিল আৰু 24 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁ নিজৰ জন্মস্থানতে আছিল। हाई स्कूल और स्नातक की परीक्षाओं में मेरी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उस समय वार्सा विश्वविद्यालय में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पेरिस की सोर्बोन विश्वविद्यालय में नामांकन कराने का निश्चय किया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें यह फैसला बदलना पड़ा। আগৰ যিখিনি পঢ়া শুনা তেওঁ মেট্ৰিক আৰু স্নাতক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু ৱাৰ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়ত যিহেতু মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আছিল সেয়েহে তেওঁ চাৰ্বন বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কাৰণে তেওঁৰ এই সিদ্ধান্ত বদলি কৰিবলগীয়া হয়। उन्होंने अपने बड़ी बहन बोइना के साथ यह निर्णय लिया कि बोइना पेरिस में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी और मेरी घरेलू शिक्षिका बनकर उसकी आर्थिक सहायता करेगी। मेरी ने 4 वर्ष तक घरेलू शिक्षिका का काम जारी रखा। अंततः 4 वर्ष बाद पेरिस से बहन का बुलावा आ गया और मेरी एक नए भविष्य की ओर चल पड़ी। 1891 में वे पेरिस के लिए रवाना हो गए। माने তাৰপিছত বায়েকৰ লগত কথা পাতি মেৰীয়ে এইটো সিদ্ধান্ত কৰিলে যে বায়েকে পেৰিছত ডাক্তৰী পঢ়িব আৰু তেওঁ ঘৰুৱা শিক্ষকৰ কাম কৰি বায়েকক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব। 4 वर्ष तक मेरी ने घरेलू शिक्षिका का काम जारी रखा। अंततः 4 वर्ष बाद पेरिस से बहन का बुलावा आ गया और मेरी एक नए भविष्य की ओर चल पड़ी। 1891 में वे पेरिस के लिए रवाना हो गई। মেৰীয়ে 4 বছৰ ঘৰুৱা শিক্ষকৰ কাম কৰিলে আৰু 4 বছৰ অন্তত বায়েকে পেৰিছলৈ মাতি পঠিয়ালে আৰু 1891 চনত পেৰিছলৈ যাত্ৰা কৰিলে। पेरिस में कुछ दिन बहन के साथ रहने के बाद मेरी ने अलग रहने का निश्चय किया।
परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अच्छा और सुविधाजनक कमरा मिलना नामुमकिन था। बायকৰ লগত অলপ দিন থকাৰ পাছত বেলেগকে থকাৰ কথা মেৰীয়ে চিন্তা কৰিলে, কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে ভাল আৰু সুবিধাজনক ৰুম পোৱাটো অসম্ভৱ হ'ল। इसलिए मेरी को चौथी मंजिल पर एक ऐसा कमरा किराया पर लेना पड़ा जो गर्मी में बहुत गर्म और सर्दी में बहुत ठंडा हो जाता था। पेरिस में ही उनका परिचय एक वैज्ञानिक से हुआ जिनका नाम था पियर क्यूरी। पियर वैज्ञानिक कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित वैज्ञानिक थे। दोनों एक दूसरे को पसंद किया और 1895 में पियर क्यूरी और मेरी क्यूरी विवाह सूत्र में बंध गए। मेरीয়ে হস্তমহলাত এটা এনেকুৱা ৰুম ভাড়াত ল'বলগীয়া হ'ল যিটো গৰমত বহুত গৰম আৰু ঠাণ্ডাত বহুত ঠাণ্ডা হয়। পেৰিছতে পিয়েৰ কুৰি নামৰ এজন বিজ্ঞানীৰ লগত তেওঁৰ পৰিচয় ঘটে আৰু দুয়োৱে ইজনে সিজনক পচন্দ কৰে আৰু 1895 চনত দুয়োৱে বিবাহ বন্ধনত আবদ্ধ হয়। मेरी क्यूरी के लिए मातृत्व भी बेहद प्रेरणादायक हुआ था अनुभव था। इन्होंने 2 बेटियों का जन्म दिया। 1897 में आयरिन हुई और 1904 में ईव। তেওঁৰ কাৰণে মাতৃত্বটো খুব প্ৰেৰণাদায়ক অনুভৱ আছিল। 1897 চনত আইৰিন আৰু 1904 চনত ইভক তেওঁ জন্ম দিয়ে। एक सक्रिय फ्रेंच नागरिक होने पर भी क्यूरी अपना पोलिश परिचय खोना नहीं चाहती थी। एगराकी सक्रिय फ्रेंच नागरिक आसिल जदिও তেওঁ কিন্তু নিজৰ पोलिश परिचयটো हेरुवाब बिचरा नासिल। उनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। वे अपने बेटियों को पोलिश भाषा सिखाती थी और दोनों को पोलैंड की सैर कराती थी। তেওঁৰ মাতৃভূমি পোলেণ্ডৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম আছিল আৰু সেয়েহে তেওঁৰ কন্যাসকলক পোলিছ ভাষা শিকাইছিল আৰু পোলেণ্ডৰ ভ্ৰমণো কৰাইছিল। इसके बाद क्यूरी दंपति ने एक साधारण कमरे में प्रयोगशाला का रूप देकर शोध कार्य आरंभ किया। उन्होंने देखा कि शुद्ध यूरेनियम की जगह खनिज में अधिक सक्रियता होती है और इससे यह प्रमाणित होता है कि यूरेनियम में कोई अज्ञात सक्रिय तत्व है। ইয়াৰ পাছত কিউৰী দম্পতীয়ে সাধাৰণ ৰুম এটাকে পৰীক্ষাগাৰৰ ৰূপ দি পেলাই তেওঁলোকৰ শোধন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁলোকে দেখিবলৈ পালে যে শুদ্ধ ইউৰেনিয়ামতকৈ খনিজ ইউৰেনিয়ামৰ সক্ৰিয়তা অধিক বেছি আৰু এই কথাটো প্ৰমাণিত হ'ল যে মিশ্ৰিত ইউৰেনিয়ামত কিবা এটা অজ্ঞাত তত্ত্ব আছে। उन लोगों ने अनुमान लगाया कि पिट्स प्लेट नामक खनिज में यह तत्व है। তেওঁলোকে এই কথাটো অনুমান কৰিলে যে পিটছ প্লেট নামৰ এটা খনিজ পদাৰ্থত এই তত্ত্বটো আছে। लेकिन पिट्स प्लेट आम चीज नहीं है, इसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। কিন্তু এই পিটছ প্লেট সাধাৰণ বস্তু নহয়, ইয়াৰ মূল্য বহুত বেছি। सौभाग्य से ऑस्ट्रिया सरकार उपहार स्वरूप क्यूरी दंपति को शोध कार्य के लिए 1 टन पिट्स प्लेट देने के लिए राजी हो गई। अर्थात অষ্ট্ৰিয়াৰ চৰকাৰে সৌভাগ্যবশতঃ তেওঁলোকক 1 টন পিটছ প্লেট দিবলৈ ৰাজি হ'ল। क्यूरी दंपति का यह शोध कार्य धैर्य अध्यवसाय और आत्मोत्सर्ग की मिसाल था। তেওঁলোকৰ এই যিটো শোধন কাৰ্য, এই শোধন কাৰ্যটো ধৈৰ্য অধ্যৱসায় আৰু আত্মোৎসৰ্গাৰ ভাৱৰ দৃষ্টান্ত আছিল। यह कार्य किसी युद्ध से कम न था। এই কাৰ্য কোনো কিবা মানে যুদ্ধতকৈও কম নাছিল। कोई टन रासायनिक पदार्थों को बड़े बड़े पात्रों में उबालने और इनके परिष्करण का काम शुरू हो गया। केबाटनो रासायनिक पदार्थ डाঙৰ डाঙৰ पात्रत उतলাই তাৰ পৰিষ্কাৰকৰণৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছিল। दोनों महीनों तक उबलते पदार्थों से निकलने वाले भाप के संपर्क में रहे। केबा माहो তেওঁলোকে সেই উতলোৱা रासायनिक पदार्थर পৰা ওলোৱা भापर संपर्कत থাকিল। घर परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। घर परिवार কাৰণে ভাবিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত সময় নাছিল। काम की अधिकता देखकर पियर कभी कभी निराश भी हो जाते थे। काমৰ अधिकता देखि মানে ইমান কাম এইবোৰ দেখি পেলাই पियर কেতিয়াবা निराश হৈছিল। लेकिन मेरी की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। কিন্তু মেৰীৰ যিটো উৎসাহ আৰু কৰ্মস্পৃহা তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ हेतु किंतु केতিয়াও कमी যোৱা নাছিলে। उबलते पदार्थों को
लंबी सॉरी से हिलाना, अनावश्यक तरल को बाल्टी से दूर फेंकना आदि सब काम मेरी खुद करती थी। সেই উতলি থকা পদাৰ্থবোৰ ডাঙৰ হেৰিয়াৰ মাৰিৰ সহায়ত লৰোৱা আৰু বাল্টিত সেই জুলীয়া পদাৰ্থবোৰ দূৰলৈ পেলোৱা এই সকলোবিলাক কাম মেৰিয়ে নিজেই কৰিছিলে। अत्यधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर में टीबी के लक्षण देखने लगे। अत्यधिक परिश्रমৰ কাৰণে তেওঁৰ শৰীৰত टीबी लक्षण দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। যক্ষ্মা अर्थात ट्यूबरकुलोसिस। एक बार तो उन्हें निमोनिया हो गया और 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। एबार तो तेखेतर निमोनिया हो গৈছিল আৰু 3 মাহলৈকে বিছনাত পৰি থাকিব লাগিছিল। लेकिन कोई भी स्थिति उनको अपने लक्ष्य से विचलित न कर सका। किंतु कोनो धৰণৰ परिस्थिति তেওঁৰ लक्ष्যৰ পৰা विचलित কৰিব পৰা नासिल। कोई टनों के रासायनिक पदार्थों को लेकर 2 वर्ष के कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उन्हें कुछ ग्राम पदार्थ हाथ लगा। केबा बছৰ মানে 2 বছৰৰ কঠোৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক শ্ৰমৰ ফলত তেওঁলোকৰ केगामान पदार्थ पाले। इन्हीं पदार्थों से छूटकारिये उस अज्ञात तत्व की ओर मोड़ गया और ये पदार्थखिनिर सहायते हे अज्ञात तत्वটো বিচাৰ ফালে তেওঁলোকৰ কাৰ্য ধাবিত হ'ল। अंततः शोध कार्य सफल हुआ। शेषत তেওঁলোকৰ শোধন কাৰ্য সফল হ'ল। एक नए तत्व की खोज हुई। এটা নতুন তত্ত্বৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল, এটা নতুন পদাৰ্থৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল। इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलेनियम रख दिया আৰু এই পদাৰ্থবিধৰ নাম তেওঁলোকৰ দেশৰ নাম অনুসৰি पोलेनियम रखिले। कुछ महीने के बाद उन्होंने रेडियम की भी खोज की। केमाह माনৰ পাছত তেওঁ रेडियমৰ বিষয়ে তাৰমানে অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিলে। চিকিৎসা বিজ্ঞান और रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई আৰু সেই চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু ৰোগ নিৰাময় ক্ষেত্ৰত এই যেটো আৱিষ্কাৰ হেতুৱে তাৰমানে যুগৰ সূচনা কৰিলে, বহুত মানে সুবিধাজনক কৰি তুলিলে। इसके पहले वे लोग रेडियोधर्मिता की भी खोज कर चुके थे। यार आगते তেওঁলোকে रेडियोधर्मितारो आविष्कार কৰিছিলে। उनकी यह खोज हेनरी बेकरेल की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी। তেওঁলোকৰ এই যেটো পৰীক্ষণ হেতু হেনৰি বেকৰেলৰ महत्वपूर्ण আৱিষ্কাৰৰ ওপৰত পৰীক্ষণৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল। बेकरेल पियर कोरी के सहयोगी थे। बेकरेल आছিলে पियर कोरीर सहयोगी। रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली, इससे पता लगाया जा सकता है। रेडियोधर्मी रश्मिर এটা বিশেষত্ব হ'ল যে हीरा आसल ने नकल এই কথাটো চাব পৰা যায়। इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग भी देखने का संभव हो गया और এই रश्मिर सहायत মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰ ভাগ অন্তৰ্ভাগো চাব পৰা তো সম্ভৱ হ'ল। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है और ये रेडियम कैंसৰৰ নিচিনা প্ৰাণনাশকাৰী বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত প্ৰভাৱকাৰী আছিল। क्यूरी दंपति के इन खोज कार्यों को चलाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। এই আৱিষ্কাৰসমূহ বা এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিউৰী দম্পতি বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত কি নাছিলে, উপযুক্ত পৰীক্ষাগাৰ নাছিলে। তাৰোপৰি उपयुक्त उनके पास न पर्याप्त उपकरण थे न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज। उपयुक्त उपकरण আৰু केঁচা खनिज पदार्थ नाছিল। प्रयोगशाला में गैस निकासी की व्यवस्था भी न थी। प्रयोगशालात गैस निष्कासনৰ ব্যৱস্থাও नाছিল। यहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था। তাৰ वातावरण কেনেকুৱা আছিল, দূষিত আৰু अस्वास्थ्यकर আছিল। फिर भी उन लोगों की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। तथापिতো কিন্তু তেওঁলোকৰ কাম কৰা উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰ কোনো ধৰণে কমা নাছিল। মেডাম
कुरी को पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में 1903 में पति पियर कुरी तथा हेनरी बेकरेल के साथ संयुक्त रूप में मिला। प्रथमबार कारण मेरी कुरीक नोबेल पुरस्कार 1903 सनत स्वामी पियर कुरी और हेनरी बेकरेलर सहित जुटियाभावे पाइছিলে। रेडियोधर्मिता की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। रेडियोधर्मितार आविष्कारों कारण ये पुरस्कार दिया हुआ। नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ साथ न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई वरन इन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली और नोबेल बटा पोৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ आर्थिक अवस्था बहुत ভাল হ'ল আৰু মানুহৰ মাজত তেওঁলোক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল। 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था और केवल 2 वर्ष बाद ही अर्थात 1903 में प्रथम बार किसी महिला को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1901 सনৰ পৰা नोबेल बटा दिया आरम्भ হৈছিল আৰু তাৰ 2 বছৰৰ পাছতে এগৰাকী মহিলাই এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। 1911 में दूसरी बार उन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और 1911 सनत रसायन शास्त्र क्षेत्र रेडियমৰ शुद्धिकৰণৰ কাৰণে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে नोबेल पुरस्कार पाइছিলে। क्यूरी दंपति को चारों ओर से मान सम्मान मिलने लगा। सकलो फाলৰ পৰা তেওঁলোকে मान सम्मान पाবলৈ धरिले, परंतु ख्याति और प्रतिष्ठा पियर के जीवन में ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सके। किंतु ख्याति और प्रतिष्ठा पियरर जीवन बेसि दिन नाथाकिल। एक सड़क दुर्घटना में मेरी कुशोर पियर इस दुनिया से चल बसी। এটা পথ दुर्घटना मेरीक एरि थৈ पियरर मृत्यु हल। पति की मृत्यु के बाद पियर के स्थान पर मेरी क्यूरी को सार्बन के भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किया। पहली बार किसी महिला ने इस पद को सुशोभित किया और पियरर मृत्युर पाছত सार्बेनर भौतिक विज्ञान विभागत मेरीक प्रोफेसर हिसापे नियुक्ति दिया हल और प्रथमगराकी महिला जिये এই पद अलंकृत करिছিল। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगस्त महीने में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया। प्रथम विश्व युद्धर समयत জাৰ্মানীয়ে আগষ্ট মাহত ফ্ৰান্সৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল তোমালোকে জানা? 1914 চনৰ পৰা 1918 চনলৈকে হৈছিল। मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ सोशल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायल सैनिकों की चिकित्सा की। और मेरी ये विश्व युद्धर সময়ত सोशल एक्सरे इकाई नाমৰ এটা সংগঠন গঠন কৰি পেলাই আঘাতপ্ৰাপ্ত सैनिकসকলক चिकित्सा আগবঢ়াইছিল জীয়েকৰ সৈতে। उन्होंने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव सेवा के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया। वैज्ञानिक जिखिनि आविष्कार আছিল সেইখিনি मानव सेवार उपकरण हिसापे व्यवहार কৰিছিলে। उल्लेखनीय यह है कि क्यूरी दंपति की दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। उल्लेखযোग्য কথাটো হ'ল তেওঁলোকৰ দুয়ো कन्याओं नोबेल पुरस्कार पाবলৈ सक्षम হৈছিলে। बड़ी बेटी आयरिन क्यूरी को 1935 में रसायन शास्त्र के लिए और छोटी बेटी ईव क्यूरी को 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। डाঙৰ ছোৱালী आयरिनक 1935 চনৰ रसायन शास्त्ৰৰ কাৰণে আৰু সৰু ছোৱালী ইভা 1965 চনত শান্তিৰ কাৰণে नोबेल पुरस्कार पाবলৈ सक्षम হৈছিল। प्रसिद्धि और ख्याति के कुछ काले पहलू भी होते हैं। प्रकृति और ख्यातिर किसुमान कला अध्याय থাকে। रेडियोधर्मी पदार्थों से निकली हुई किरणें बहुत तीक्ष्ण होती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों पर विकिरित रश्मि बहुत तीक्ष्ण है। इनसे जीवित कोशिकाओं के नष्ट होने का खतरा होती है और यार द्वारा जीवित कोशिकाबिलाक नष्ट होৱাৰ विपद থাকে, आशंका থাকে। अधिक समय रेडियोधर्मी पदार्थों के बीच रहने के कारण मेरी को एनीमिया और थकान का अनुभव होने लगा। बेसी समय रेडियोधर्मी पदार्थर লগত থকাৰ কাৰণে मेरी एनीमिया और भागर अनुभव होबोले धरिले। रेडियम की शक्तिशाली किरणों ने उनके शरीर को भीतर से कमजोर और खोखला कर दिया। रेडियমৰ शक्तिशाली रश्मिये তেওঁৰ শৰীৰটো ভিতৰি
कमजोर और खोखला कर पेलाले। अंत में 4 जुलाई 1934 को मेरी क्यूरी का निधन हो गया और 1934 सनर 4 जुलाई मेरी क्यूरी मृत्यु है। मैडम क्यूरी की मृत्यु की खबर से विज्ञान जगत में शोक का माहौल छा गया और त्यार मृत्युर खबरटुए गोटे विज्ञान जगतते हुकर छा पेलाले। मेरी की मृत्यु पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा। मानव समाज उनके युगांतकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। आज मैडम क्यूरी इस संसार में नहीं है, परंतु विश्व के सभी महिलाएं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकती हैं। त्यार मृत्युत महान विज्ञानी एल्बार्ट आइनस्टाइने কৈছিলে যে পৃথিৱীত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসিদ্ধ হস্তিৰ নাম আছে, নামবিলাকৰ ভিতৰত এইটো এটা নাম হ'ব, মেৰী কিউৰীৰ নামটো থাকিব আৰু তেওঁ মানৱ সমাজৰ কাৰণে যি যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ আৰু কল্যাণকাৰী কাম কৰিলে সেইবোৰ মানৱ সমাজে সদায় মনত ৰাখিব। আৰু মেডাম কিউৰী এতিয়া এই সংসাৰত নাই, কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা বহুতো মহিলাই নিশ্চয় প্ৰেৰণা ল'ব পাৰিব। দ্যাটছ অল ফৰ টুডে। আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাবা আৰু বহুখিনি শিকিব পাৰিছা বুলি মই ভাবিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।